I'm connecting the whiteboard. Face looks dull today. What? What happened to you? Your face looks dull. Really? Do other people also feel that way? I think I always look like this. See, even others are telling. No, no one else is telling that. No, they are telling, except, sorry, I always forget this guy. Except one guy, the one whose name is appearing as a Neha Sharma. Okay, coming to intervals now. Can everyone see paint now? Can everyone see paint? Okay, so intervals. If you have to ask me what's the most important thing in becoming a musician, I will say it's intervals. It's the most difficult concept to master. People spend their lives mastering intervals, and there's no end to it. No end to it. You must be thinking, what is interval? So, उसके practical applications हम बाद में देखेंगे, but आज theoretically समझते हैं. Intervals का definition read करो, सृष्टि from your sheet. I have to. 1 second. Uh, okay. The pitch distance between two notes, the smallest interval is a half step. Hi Navya. Hi Navya. So, do you have the sheet of intervals? We are discussing intervals today. No, I don't have those sheets. All right, I'm sending it to you. Just open it. All right, Shrishti, can you mute yourself? Otherwise, my voice will echo when I speak. So, as I was saying, intervals is the most important thing. If you have mastery on intervals, you can compose songs. जब आप कोई सॉन्ग सुनते हो और आपको दिखता है अरे इस नोट से मुझे काफी दुख फील हो रहा है या जो ये वाली लाइन है ना ये वाली मेलोडी कितनी अच्छी है इस वाली मेलोडी को सुन के इतना अच्छा फील क्यों होता है या बिली आइलिश के सॉन्ग्स जो फिनियस कंपोज करता है फिनियस बनाता है फिनियस इज अ मास्टर ऑफ इंटरवल्स कि वो जो सॉन्ग्स जो मेलोडिक लाइंस जिस तरीके से वो करता है जिस तरीके जो इंटरवल्स के साथ प्ले करता है दे मेक दो सॉन्ग्स. So every composer, if you want to make your own song in the future, if you want to study songs कि इस song में ऐसी क्या बात थी जिस which made it hit, तो इंटरवल की समझ होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर हम बस नॉर्मली देखें द पिच डिस्टेंस बिटवीन टू नोट्स इज इंटरवल. दो नोट्स के बीच में कितना गैप है और गैप नहीं है इट्स अबाउट द रिलेशनशिप. इसे व्हाट इज द इंटरवल बिटवीन मी एंड यू इट्स ऑफ अ स्टूडेंट एंड अ टीचर. You can understand it like that. So interval को आप समझो is the relationship between the notes. सा और रे का क्या रिलेशनशिप है सा गा का क्या रिलेशनशिप है सा माँ का क्या रिलेशनशिप है सा का पा के साथ क्या रिलेशनशिप है क्या रिश्ता है सा का उसके खुद अपर सा के साथ क्या रिलेशनशिप है इसी रिलेशनशिप को इंटरवल बताता है एंड इंटरवल जिसको आ गया वो दैट पर्सन इज अ म्यूजिशियन. He might not be a singer, he might not be a guitarist, but that person is a musician. So, the pitch distance between two notes is interval. The smallest interval in music is of half a step. कैसे? जैसे हम chromatic scale लिखते हैं. Chromatic scale क्या होता है? Navya, can you tell me what is a chromatic scale?
Navya, are you there? Can you tell what is a chromatic scale? Actually, I get removed from the meeting somehow again and again. That is very weird. Can you leave and rejoin? Have you entered from a mobile? Yeah. Can you try entering from a laptop? Does your mobile have the app of Google Meet? If your app, I think she again got removed. If your app doesn't have, if your mobile doesn't have the app of Google Meet, then you will keep getting removed. ओके, आश्रित आप बताओ क्रोमैटिक स्केल क्या होता है? A sharp, B, C sharp, D sharp, E, F sharp, G sharp. इसका मतलब होता है कट 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 स्टॉप. आश्रित, क्रोमैटिक स्केल का ये तो आपने बता दिया, क्रोमैटिक स्केल के नोट्स. क्रोमैटिक स्केल का मतलब क्या है? Ma'am, I don't know. रोहित आप बताओ. Ma'am, can I tell? श्योर It मृणाल. contains 12 musical notes. Ma'am, Okay, sorry. it is the whole Chromatic scale is a whole scale which half. proceeds by half step. आश्रित, what are you saying? Whole half. ये तो मेजर स्केल का फॉर्मूला है, क्रोमैटिक स्केल का फॉर्मूला तो नहीं है. ये तो मेजर स्केल का फॉर्मूला है आश्रित. होल हाफ. और क्रोमैटिक स्केल में 12 नोट्स होते हैं. होल हाफ से सिर्फ 7 नोट मिलते हैं. समझ रहे हो? क्रोमैटिक स्केल का फॉर्मूला अगर आप पूछोगे तो सिर्फ क्या है, हाफ 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 12 बार हाफ बोल दो, 12 के 12 नोट मिल जाएंगे. तो क्रोमैटिक स्केल इज अ नोट, जस्ट लाइक Minank and Rohit said, a scale, a group of notes in which all 12 notes of music are there. So the first is A. Shrishti, pay attention here. A sharp, B, C sharp, D sharp, E, F sharp, G sharp. So obviously the smallest interval between any two notes is of a half step. Is that evident? Is that clear that the smallest interval, smallest gap or smallest distance is that of a half step? Okay. Now, Sanvi, Excuse me, ma'am. yes, Mrinank. मैम कोई क्वार्टर स्टेप वगैरह कुछ नहीं होता है, सिर्फ हाफ स्टेप ही होता है. क्वार्टर स्टेप की बात कर रहे हो आप? क्वार्टर स्टेप. सी मृणांक, आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, उसको आंसर करने में पूरे 2-3 घंटे लग जाएंगे. हम उतनी डिटेल में बाद में जाएंगे, क्वार्टर स्टेप में बाद में जाएंगे. अभी ये मानो हाफ स्टेप स्मॉलेस्ट इंटरवल है, क्वार्टर स्टेप नहीं हो सकता. जस्ट ये अभी ये मान के रखो. बट अच्छा क्वेश्चन था. ओके. Now, Sanvi, I want you to read from the line when played simultaneously on the interval sheet. Sanvi, are you there? Sanvi, are you there? Okay. रोहित आप रीड करो वहां से, when played simultaneously. Okay. They are called harmonic intervals. When played successfully, they are called melodic intervals. Should I keep on reading? The other thing is a third interval.
No, read that line again. Okay. So distance between two notes, the smallest interval in music is a half step. When played simultaneously, they are called harmonic intervals. When played successively, they are called melodic intervals. Okay, good job. So जब मैं दो नोट्स को साथ में प्ले कर दूं टुगेदर, it is called a harmonic interval. Harmonic. So Navya, you just missed that one thing I told, that the smallest interval is of a half step, evident through the chromatic scale. Now, when two notes are played together, it's called a harmonic interval. The relationship is that of a harmonic interval. Shrishti, stop doing the phone. Yeah. So harmonic interval, why? बिकॉज वो दोनों नोट साथ में है तो वो हारमोनी एक तरीके से क्रिएट कर रहे हैं. मेलोडी और हारमोनी में क्या फर्क होता है? मेलोडिक इज समथिंग दैट यू कैन सिंग one note at a time. Harmonic is two notes together or two or more than two notes together. जैसे chords, solo notes make up a melody. Finger building exercise is an example of a melody. Ta 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 ta. I can sing it. But a harmonic interval, on the other hand, represents a chord. कॉर्ड में हम दो या दो से ज्यादा नोट साथ में बजा रहे हैं तो हम उसे गा थोड़ी ना सकते हैं. ए मेजर कॉर्ड में 5 स्ट्रिंग्स बज रही हैं, मैं बोलूंगी ए मेजर कॉर्ड गाओ, कौन सी स्ट्रिंग गाओगे? 5 वोकल कॉर्ड्स तो है नहीं कि पांचों वोकल कॉर्ड्स की आवाज साथ, 5 स्ट्रिंग्स की आवाज साथ में निकाल दी एक ही बार में. तो हार्मनी कैन नॉट बी संग. दैट्स व्हाई टू नोट्स प्लेड टुगेदर, सपोज आई प्ले टू नोट्स टुगेदर, सो दैट इज कॉल्ड अ हार्मोनिक इंटरवल. तो मैं क्या करूंगी, सा और गा को साथ में प्ले करूंगी, सा एंड गा. सपोज आई टेक सी एज द सा, तो ई मेरा गा हो जाएगा, नोट ई. ये सी है और ये ई है. This is a harmonic interval. But if I play it one by one, first I play C, Sa, then I play E, Ga, then that is melodic interval. एक के बाद एक. Sorry. This is a melodic interval. और reverse. Ga, Sa. So दो नोट को अगर साथ में प्ले करूं, it makes a harmonic interval. अलग अलग प्ले करूं, मेलोडिक इंटरवल. यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. नव्या, कैन यू रीड द डेफिनेशन ऑफ मेजर थर्ड इंटरवल? A major third interval spans 4 half steps or 2 tones from the root. They sound consonant, pleasant, happy, and bright. Okay, Navya, you all right. Thanks for reading that. So just like Navya said, a major third interval spans 4 half steps or 2 whole steps. तो मेजर थर्ड इंटरवल, बहुत तरह के इंटरवल्स होते हैं. मेजर थर्ड इंटरवल सबसे कॉमन है. और अगर हमें किसी भी नोट का मेजर थर्ड इंटरवल निकालना है तो हमें 2 होल स्टेप चलना पड़ेगा उस नोट से या 4 हाफ स्टेप्स. इसमें कोई डाउट है कि ये दोनों चीजें सेम है? 2 होल स्टेप मतलब 4 हाफ स्टेप, सिंपल मैथ्स. 1 होल स्टेप इज 2 हाफ स्टेप्स, 2 होल स्टेप्स इज 4 हाफ स्टेप्स. अब सपोज मुझे ए मेजर का, ए नोट का, ए अगर मेरा रूट नोट मान लिया मैंने, मुझे निकालना है इसका मेजर थर्ड इंटरवल. तो ए टू बी 1 होल स्टेप, बी टू सी शार्प नेक्स्ट होल स्टेप. तो ए का मेजर थर्ड इंटरवल क्या है? सी शार्प. एनी डाउट इन दिस? ओके, नाउ आई विल आस्क क्वेश्चंस. रोहित, ए शार्प का मेजर थर्ड इंटरवल क्या है? ये शार्प का डी. What? हेलो. What? डी.
यस। आश्रित, बी का मेजर थर्ड इंटरवल क्या है? मैम D sharp. वेरी गुड। एवरीवन म्यूट देमसेल्व्स। सानवी, सी शार्प का मेजर थर्ड इंटरवल क्या है? Sanvi, what is the major third interval of C sharp? Mrinank, what is the major third interval of C sharp? F. Good. Srishti, what is the major third interval of G? Not sure. B. You were right. Good job. Okay. Wait. No, you are wrong. And I'm kidding. You are right. Okay. G sharp का major third interval क्या है नव्या? C. Okay, major third interval clear है? अब जो मैं बताऊंगी आपको वो बहुत ही भयानक थ्योरी है। इसके बाद ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब मैं आपको ये बता दूं, हम कोई रूट नोट मान रहे हैं और फिर उसका मेजर थर्ड इंटरवल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मेजर थर्ड इंटरवल exists in the reference of a root note. The root note is the origin and major third is its relationship. The distance acts as a relationship between the third note and the root note. So अगर मैंने root note को सा मान लिया तो फिर ये जो नोट है इसका जो पॉपुलर फॉर्म है इंडियन क्लासिकल में वो है गा। मतलब आप सा ले रहे हो, जो भी नोट उसके 4 हाफ स्टेप्स या 2 होल स्टेप बाद फॉल कर रहा है वो एक्चुअली उसका गा है। सा रे गा सा गा। इस रिलेशनशिप को हम मेजर थर्ड इंटरवल कह देते हैं इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ वेस्टर्न। सो अगर आप किसी इंडियन वेस्टर्नर से बोलोगे कि ओके दिस इज द रूट नोट एंड दिस इज द मेजर थर्ड इंटरवल, इंडियन क्लासिकल वाले लोगों के लिए वो सा और गा होगा। अब आप बोलोगे सा और गा, लेकिन वो तो 4 हाफ स्टेप बाद फॉल कर रहा है या 2 होल स्टेप बाद फॉल कर रहा है, वो थर्ड नोट कैसे है? ये कैसे, क्या हो रहा है ये? याद करो, आई टोल्ड यू द मेजर स्केल फॉर्मूला। अगर हमें let's rub this, let's not rub this, let's come a bit little down. Okay, so I told you that suppose I have sa, then I have re, ga, मैंने आपको बताया था अगर किसी भी स्केल का हमें किसी भी नोट का मेजर स्केल निकालना है या उसका मेजर स्केल सारे गामा पाधा निसा का ही एक तरीके से यूनिवर्सल टर्म है। सो हम क्या लगाएंगे, हम सा ले लेंगे, फिर होल होल हाफ होल 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 हाफ, और हमें सारे नोट्स मिल जाएंगे। ये फॉर्मूला हमें क्रोमैटिक स्केल पे लगाना होगा। ये क्लियर है? तो आप देखो
सा से जब हम 2 होल स्टेप चलेंगे तभी तो हमें गा मिल रहा है, दिखा सामने। तो इसलिए अगर ये मेरा फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो ही तभी तो ये मेरा थर्ड इंटरवल हो रहा है, मेजर थर्ड इंटरवल, जो हमें क्रोमैटिक स्केल में जिसको भी हम सा मान रहे हैं उससे 2 होल स्टेप्स चलेंगे तभी हमें हमारा गा मिलेगा, हमारा मेजर थर्ड इंटरवल मिलेगा। अब मेजर क्यों बोल रहे हैं, ऐसे माइनर थर्ड इंटरवल क्यों नहीं बोल रहे हैं, ऐसे मेजर थर्ड इंटरवल क्यों बोल रहे हैं, मेजर थर्ड डिस्टेंस? because sa and ga together sound happy. Sa and ga का relationship is very happy, is very stable, is very consonant, is very bright. मैं सा और गा को साथ में रखती हूँ और आप देखो कितना प्यारा रिलेशनशिप है इनका। ला 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 ला, it's a very happy relationship. Now let's look at this on the guitar. So ये सपोज मेरा रूट नोट है, सो सा से अगर ये मेरा सा है, ओपन स्ट्रिंग ई, फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन इज माय सा, then what will be my ga? It will be 2 whole steps from ga और 4 frets ahead. 4 frets, क्योंकि हर एक फ्रेट हाफ स्टेप सिंबलाइज करता है, तो एक हाफ स्टेप, सेकेंड हाफ स्टेप, थर्ड हाफ स्टेप, फोर्थ हाफ स्टेप, या 2 whole step. So 4th fret on the first string is my ga. Sa ga, sa open string and 4th fret on first string becomes the ga. Sa ga sa re, एक whole step लिया, sa re ga sa ga. ये क्लियर है? सपोज मैंने 5th फ्रेट को सा मान लिया, 5th फ्रेट को सा मान लिया, तो अब मुझे 5th फ्रेट से 4 फ्रेट बाद जो नोट पड़ेगा वो उसका गा है। 4 फ्रेट बाद जो 4 हाफ स्टेप्स या 4 नाइन्थ फ्रेट उसका गा होगा ना फिर। Yes, the 9th fret would be because plus 4. Sa ga sa ga sa ga, वही रिलेशनशिप है, सा गा, या अगर सपोज ये है सा गा, वो रिलेशनशिप ऑफ जो टोनालिटी है वो भी कॉपी हो रही है, इससे हम कहते हैं मेजर थर्ड इंटरवल। So coming back, I'll just tell one more thing जिससे आपको थोड़ी सी चीजें क्लियर होंगी। इसमें अभी किसको क्या क्या डाउट है, जस्ट थ्रो योर डाउट्स। मेजर थर्ड इंटरवल में किसी को कोई और डाउट है? सब कुछ क्लियर है, वाह। ओके, सो सा मेजर स्केल, जो मेरा मेजर स्केल होता है, सारे जो आप सी मेजर स्केल भी प्ले कर रहे हो अपने एग्जाम में, सारे गा मा पा धा नी सा, सारे गा मा पा धा नी सा विद अ डॉट अप। सो अगर मैं सी मेजर स्केल लिखूं यहाँ पे, तो सी हमारा सा सी हो गया, सी डी ई एफ जी ए बी सी, यही आप स्केल बजा रहे हो डेब्यू ग्रेड में, सी डी ई एफ जी ए बी सी। इफ यू लुक एट द नोट्स यू आर प्लेइंग इन द सी मेजर स्केल, दोज आर दीज नोट्स।
सी मेजर स्केल ही ऐसा स्केल है जिसमें कोई एक्सीडेंटल नहीं होता, कोई शार्प नहीं होता, कोई फ्लैट नहीं होता, बहुत आसान सा स्केल है। अब इनके टेक्निकल टर्म्स क्या हैं? टेक्निकल टर्म्स में आप सा को बोल दोगे रूट या टॉनिक, रे को आप क्या बोलोगे? मेजर सेकंड, गा को क्या बोलते हो टेक्निकल टर्म में? मेजर थर्ड, मा को क्या बोलते हो? परफेक्ट फोर्थ, पा को कहते हो परफेक्ट फिफ्थ इंटरवल, धा को कहते हो मेजर सिक्स्थ, नी को कहते हो मेजर सेवेंथ, और सा डॉट को कोई गैस कर सकता है क्या कहते हैं इंटरवल, टेक्निकल इंटरवल के टर्म में? We call it the octave. The relationship between the lower sa and the upper sa of the tar saptak or the higher octave is that of an octave. Sa, 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 sa. This relationship is of an octave. Yeah. Sa, 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 sa. Octave jump भी कहते हैं इसे. When we sing. So I am giving you all 2 minutes. I'll just be back. I'll just get freshen up. I'll be back in a minute. आपको याद करना है, आपको ये कंफ्यूज नहीं करना कि सी का मतलब रूट है. बस सी मेजर स्केल में सी विल रिप्रेजेंट द टॉनिक, डी विल रिप्रेजेंट द मेजर्स, बट हम डी मेजर स्केल करेंगे तो फिर हमारा सा डी बन जाएगा. तो आपको अभी बस ये याद रखना है, सा इज द रूट और टॉनिक, रे इज द मेजर सेकेंड, गा इज द मेजर थर्ड, ma is the perfect fourth, pa is the perfect fifth, dha is the major sixth, ni is the major seventh, and sa of the tar saptak is called the octave. And this is only true for major scale. हम minor scale की बात नहीं कर रहे, हम फर्स्ट ग्रेड में, डेब्यू ग्रेड में माइनर स्केल है भी नहीं, तो ये खाली मेजर स्केल के लिए, इसलिए आपको इसमें कोई माइनर वर्ड नहीं दिखेगा. मेजर स्केल के लिए सा रे गा मा पा धा नी सा. दिस इज ट्रू. यू हैव 1 minute टू मेमोराइज दिस. आई विल बी बैक. याद करना शुरू कर दो. आई एम जस्ट बी बैक.
एम आई विजिबल? ओके, सबको याद हो गया ये? ठीक है। ओके नव्या, आप बताओ मुझे। Why do we put perfect fourth, perfect fifth? ओके ऑलराइट, मैं इसका आंसर देती हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एवरीवन ओपन द कैमरास। और भी किसी के दिमाग में आया था कि परफेक्ट क्यों यूज कर रहे हैं फोर्थ और फिफ्थ के लिए? सबको मेजर मेजर बोल दिया है, बाकी फोर्थ के लिए परफेक्ट क्यों है और फिफ्थ के लिए क्यों है? ओके, मृणांक में आया था। सृष्टि, कैन यू ओपन योर कैमरा? सृष्टि, प्लीज ओपन योर कैमरा। ओके, सो एज आई वाज सेइंग, यहाँ पे जो लोग भी सिंगिंग में है, आज मैं फोर्थ का नहीं दूंगी, आज मैं खाली फिफ्थ का बताऊंगी, क्योंकि फोर्थ का बताने के लिए थोड़ी और डिटेल थ्योरी में जाना पड़ेगा कि फोर्थ को परफेक्ट क्यों बोलते हैं। बट आपने देखा, हम रूट को मेजर रूट नहीं बोल रहे, मेजर टॉनिक नहीं बोल रहे, हम फिफ्थ को भी मेजर फिफ्थ नहीं बोल रहे, फोर्थ के भी बाद में आएंगे। सृष्टि एंड आश्रित, जब मैंने आपको बताया था कि आप लोग सा का रियाज करो तानपुरे पे, तानपुरा जब आप सुनते हो तो तानपुरे में क्या बज रहा होता है? कौन से नोट्स बज रहे होते हैं? तानपुरे पे जब आप रियाज करते हो, सो तानपुरे में एक तो बज रहा होता है सा, जिसपे आपको सा लगाना है। सा ये तीन नोट्स कौन से तीन नोट्स हैं? सा, पा, सा। सा, पा, सा, सा, पा, सा, सा, पा, सा, एव, 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 सो नेक्स्ट टाइम मैं तानपुरा यहाँ रखूंगी, आई डोंट नो वेयर इज इट राइट नाउ, एंड आई विल ऑल्सो शो यू। और वैसे आप लोग तो यूट्यूब पे जाके भी सुन सकते हो। सो तानपुरा बोलते सा लगाया करो, जो बड़े बड़े गुरु लोग होते हैं वो ये बोलते हैं कि 1 घंटे तक सा लगाते रहो तानपुरे पे। उसमें भी जब हम बोल रहे हैं सा क्यों लगाते हैं, सा को स्ट्रेट करने के लिए, सपाट करने के लिए, से हमारा नोट हिले ना, बेस लाने के लिए आवाज में। तो भी उसमें पा बज रहा है, ये भी तो आ सकते हैं पा इज डिस्ट्रैक्टिंग अस फ्रॉम सा लगाने से। पा को क्यों ला रहे हैं? पा को इसलिए लाते हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट इज सा, but the second most important note in any scale is pa. Why? Because sa and pa kind of lies in the middle, and pa and sa come together very well. एंड सा और पा ना मेजर जैसे साउंड करते हैं ना माइनर जैसे साउंड करते हैं, वो दोनों साथ में उनका जो रिलेशनशिप है, इट साउंड्स लाइक सेनापति एंड राजा जैसा जो रिलेशनशिप होता है ना, कि दे साउंड वेरी कॉन्सोनेंट टुगेदर, कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम लाइक वी आर स्टेबिलिटी, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी है, और हैप्पीनेस भी नहीं कह सकते ना उसे सैडनेस कह सकते हैं। सो मेजर और माइनर वाला रिलेशनशिप होता ही नहीं है, उनका एक परफेक्ट स्टेबिलिटी का रिलेशनशिप होता है। दैट्स वाई ट्रम्पेट जिन लोगों ने प्ले किया है, ट्रम्पेट में आप खाली फूक के फोर्स से सा और पा लगा सकते हो, बट बाकी नोट्स लगाने के लिए आपको उंगलियां यूज करनी पड़ती है। पा इज सो नेचुरल इवन इन नेचर। सो सा एंड पा को आप साथ में सुनो, उनका रिलेशनशिप कैसा है। अब सा और पा को साथ में लगा के मैं कुछ सैड भी गा सकती हूँ और कुछ हैप्पी भी गा सकती हूँ। इट डजंट अफेक्ट द टोनालिटी। हैप्पीनेस एंड सैडनेस दोनों चल जाती है, ये दोनों इतने परफेक्टली है कि इसमें ना कोई पॉजिटिव रिलेशन है, कोई नेगेटिव भी नहीं है।
It's neutral. Sa and pa become neutral together. So कुछ happy. La 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 la. I am so happy. I am so happy today. It's a bright, bright, bright day. Okay, that improvisation was really bad. Now I will sing something minor and it will fit with sa and pa together. It's a bad day, it's a bad day. I hate myself, I hate this world. It's so bad out there. I lost my family. I lost everyone. Really I cringe that. lost. Yes. What are you saying, Srishti? It's a super cringy background music, I'm not gonna lie. Like, you know, this music that comes, hello, darkness, my old friend. I've come to talk to you again. Oh, Yeah, yes. so It resembles there. It resembles that. You're right. So, are you getting that sa and pa together are very not major or minor? You can make them both major and that's why it's called perfect. It's not major, it's not positive, it's not negative, it's neutral, it's realistic in a sense. It's not optimistic, it's not pessimistic, it's a realist like me. So that's why sa and pa को perfect कहते हैं. Fourth को perfect क्यों कहते हैं उस पर बाद में जाएंगे, वो थोड़ा सा डिटेल है. So that's why sa and pa play in Tanpura, and sa and pa ka relationship is very stable. Sa is the first important note in any scale, pa is the second most important note in any scale. Okay, so ये clear है? Okay, now Navya, you लेकिन जैसे कहते हैं तो हम पा को हम बोलते हैं परफेक्ट, तो हम सा को क्यों नहीं बोलते फिर परफेक्ट? सा को हम परफेक्ट इसलिए नहीं कहते क्योंकि सा एक तरीके से ओरिजिन ही है, उसकी परफेक्टनेस हमें बताने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दैट इज द मदर. वहां से सा से सारे नोट्स निकल रहे हैं, तो सा तो रूट है, उसको हमें बताने की जरूरत नहीं कि ये परफेक्ट है. वो तो दैट इज द रूट, वहां से ही पौधा जो बाकी नोट्स का है, रे गा मा पा धा नी, वो निकल रहा है. मैं आपको बताती हूँ. सा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था. वेयर इज द पेन? Just give me a second. I think I lost. Did I just lose my stylus? do you use Wacom or Huion? I use weak. We never heard of that. I use Wacom usually. Oh, to draw? Yeah, For for my digital digital art? art. That's so nice. I don't know. Did it fall somewhere? Just give me a second. Oh, found it. All right. So as I was saying, सा का फुल फॉर्म है षडज. षडज का मतलब क्या होता है? श का मतलब क्या हुआ? षड का मतलब एक तरीके से होता है 6, एंड ज का मतलब होता है एक तरीके से जन्म. तो स has come from the word shadaj, and sa is the mother, is the root. जो बाकी 6 नोट्स को जन्म देती हैं, वो 6 नोट्स कौन से हैं? रे गा मा पा धा नी. सा इज द मदर ऑफ दीज 6 नोट्स. सा का फुल फॉर्म ये है कि 6 को जन्म देना. Sa has given birth to the shad plus j. ज मतलब जन्म देना एक तरीके से. तो 6 नोट्स को जन्म दिया है, तो सा को हम बोलने परफेक्ट है. हम पा को स्पेशली बता रहे कि इट्स परफेक्ट, इट्स नॉट मेजर और माइनर. बट सा की तो बात ही नहीं उठती, बिकॉज सा से ही ये सारे नोट्स निकल रहे हैं. सा इज द ओरिजिन, सा इज द रेफरेंस पॉइंट, सा इज द जीरो. यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक दैट.
ओके, नाउ कमिंग बैक, आश्रित आप मुझे बताओ कि स्टार सप्तक वाले सा विद अ डॉट ऊपर, हायर सा को का टेक्निकल नेम क्या है? सा का टेक्निकल नेम हायर वाले सा का, सा तो रूट है, उसका जो ऊपर वाला सा है, हायर सा, उसका टेक्निकल नेम क्या है? आपको एक क्लू दूं, ओ से शुरू होता है उसका नाम, मैम व्हाट? ओ से नाम शुरू होता है, ओ। ऑक्टोव। ऑक्टेव, राइट आंसर, ऑक्टेव। ओके रोहित, रे का टेक्निकल नेम क्या है? मेजर सेकंड। वेरी गुड। सृष्टि, माँ का टेक्निकल नेम क्या है? इसका माँ। perfect 4. वेरी गुड। नव्या, धा का टेक्निकल नेम क्या है? Major 6. अमेजिंग। मृणांक, नी का टेक्निकल नेम क्या है? Major 7. गुड। ओके, इसमें कोई डाउट? इंटरवल क्लियर है? मेजर थर्ड इंटरवल, माइनर थर्ड इंटरवल हम ग्रेड 1 में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेजर थर्ड इंटरवल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। माइनर थर्ड इंटरवल कम्स इन ग्रेड 1। सो अभी आपको खाली मेजर थर्ड इंटरवल को दिमाग में रखना है कि 4 हाफ Ma'am, स्टेप। can you ask me any other question? ओके, आश्रित, गा का टेक्निकल नेम क्या है? Major 3rd. वेरी गुड। और पा का सभी को पता है, पा इज द परफेक्ट फिफ्थ। ओके, इंटरवल में कोई और डाउट? अब आप लोगों को मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। आप लोगों को सबको कॉर्ड्स काफी सारी आती ही हैं अब तो, ए मेजर, डी मेजर, ई मेजर कॉर्ड आती है। सो ये लास्ट चीज है जिसको हम देखते हैं, जिससे आपको इंटरवल का थोड़ा पता चलेगा। सो लेट्स टेक ए मेजर कॉर्ड। ए मेजर कॉर्ड के नोट्स क्या है? ए, सी शार्प, ई। कॉर्ड चार्ट में देखो ए मेजर के कॉर्ड नोट्स क्या है? ए, सी शार्प, ई, राइट। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ए मेजर कॉर्ड में ये सा हो जाएगा ऑब्वियसली, दिस इज गा एंड दिस इज पा। So, hmm. सा गा, सा गा पा। हर मेजर कॉर्ड का फॉर्मूला क्या होता है? सा गा पा। Because in every major chord, the first most important note is sa, the root itself. The second most important is pa, and the third most important is the ga. Major third interval, perfect fifth, major third, and root put together make any major chord. How can we test this? हम अगर ए मेजर स्केल आप निकालोगे तो क्या नोट होंगे? ए, बी, सी शार्प, डी, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए। अगर आप ए मेजर निकालोगे होल होल हाफ, होल 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 हाफ करके, तो यही आएगा। तो हमने फर्स्ट नोट ले लिया, थर्ड नोट ले लिया, फिफ्थ नोट ले लिया, सा रे गा मा पा, सा गा पा। इतना क्लियर है? किसको डाउट है इसमें? अगर आप कीबोर्ड पे ये 3 नोट्स बजाओगे, ए, सी शार्प एंड ई, सा गा पा, ए मेजर कॉर्ड विल प्ले। आई विल प्ले ए, सी शार्प, A, C sharp, E together make the A major chord. Sa ga pa is the formula, or some people call it 1 3 5.
यहाँ तक कोई डाउट? कैन आई मूव अ लिटिल अहेड? थोड़ा सा इसको एडवांस, थोड़ा कॉम्प्लेक्स करूंगी. लेट्स लुक एट द नोट्स ऑफ ए माइनर कॉर्ड. ए माइनर कॉर्ड भी कॉर्ड्स 1 में है, उसके नोट्स देखो क्या है. रोहित आप बताओ उसके नोट्स क्या लिखे हैं ए माइनर कॉर्ड के. क्या लिखे हैं बताओ. Okay, A minor chords here, right? या A minor you want to know? यस ऑब्वियसली ए माइनर, not Z minor. It's written in the whiteboard also. A minor chord. A, why can't I see? Okay. No. A minor chord, what would be the? Acha, that depends on formula, right? So, फॉर्मूला मत लगाओ, बस कॉर्ड्स की खोलो, उसमें से बता दूं. मैम मैंने खोल ली थी, मैं बता दूं. चलो आप बताओ मृणांक. मैम है EAC. या A C E. अब A मैम माइनर, ACE वेरी गुड आश्रित. अब A माइनर कॉर्ड के फॉर्मूला में और A मेजर कॉर्ड के फॉर्मूला में क्या फर्क है? सृष्टि बताओ. सृष्टि, try guessing. What is the difference between A minor chord and A major chord formula? Like notes. Navya, any observation? The major Ma'am, third can I turns to a major second. Just that. Ma'am, can I tell? Yes, आश्रित बताओ. In A major, C has C major, C sharp, and in minor, C don't have sharp. True. So ये मेजर सेकंड नहीं है. हमने माइनर स्केल के तो डिस्कस ही नहीं किए ना, अभी उससे कंफ्यूज हो जाओगे. अभी बस ये मानो कि ये भी 1, अब ये हो गया फ्लैट 3-5. सो अगर हम मेजर कॉर्ड में मेजर कॉर्ड का जो थर्ड नोट है उससे फ्लैट कर दें, सी शार्प को फ्लैट करेंगे तो क्या मिलेगा? सी मिलेगा, राइट? आधा गिरा देंगे सी शार्प को तो सी ही तो मिलेगा. अब आपको दिख रहा है सा, ये भी अब क्या हो गया एक तरीके से सा, इसको मान लो कोमल गा. सा कोमल गा पा, आधा गा को गिरा देंगे तो कोमल गा ही तो मिलेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सा कोमल गा पा, आप देख रहे हो सा एंड पा आर परफेक्ट टुगेदर. उनमें मेजर माइनर नहीं है, क्योंकि गा से फर्क पड़ रहा है कि वो मेजर होगा या माइनर होगा. तो सा एंड पा अलोन हैव नो मेजर और माइनर क्वालिटी टू इट. ओनली व्हेन गा एंटर्स द इक्वेशन, इज इट अ गा or it is a shuddh ga or is it a komal ga? If it's a shuddh ga, then it's a major chord. If it's a komal ga, then it is a minor chord. आप देखोगे ये हर जगह हो रहा है. सो वन, सो मेजर कॉर्ड का फॉर्मूला ऑल इन ऑल, सो एनी मेजर कॉर्ड का फॉर्मूला होता है 1-3-5 एंड माइनर कॉर्ड का फॉर्मूला होता है 1-3-5. मतलब सा गा पा और इसका होता है सा कोमल गा पा. और आप ये डी मेजर में लगा के देख लो. डी मेजर आपके पास कॉर्ड शीट है, डी मेजर के नोट्स देखो, फिर डी माइनर के नोट्स देखो, डी मेजर स्केल निकालो, आपको ये पूरा रिलेशनशिप दिखेगा. ओके, आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि मुझे लग रहा है यही काफी थ्योरी हो गई है एंड थोड़े से लोगों को नई थ्योरी है तो थोड़ा वो भी सिर भी घूमा होगा बीच बीच में. एनी डाउट्स?
मैम डाउट नहीं है, लेकिन ये ज्यादा है, लेकिन इजी है। ओह नाइस। ओके, मृणांक को इजी लग रहा है। सृष्टि, एनी डाउट? आश्रित, एनी डाउट? क्लियर है ये? अभी इसको समझो, यू विल गेट द शीट ऑफ इट, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एज कंसेप्ट एंड ट्राई टू लुक एट योर कॉर्ड शीट्स। उसमें नोट्स भी दिए हुए हैं इस वजह से ही कि yes this relationship is happening. याद कर लो everyone right now. Major chord formula 1 3 5 सा गा पा. Minor chord formula 1 flat 3 5 या सा कोमल गा पा. Okay, all right, then I think this much theory is good for today. Any question before I can end the session? This is not related to this theory, but like, what should I be prepared for in the next class? You should be prepared with your finger bending that you were doing. All right, what we were doing in the last class. All right, bye bye everyone, bye.